name is Sujita. I'm from West Virginia. And today I would like to invite Savita ma'am to give her divine wisdom on this International Spiritual Women Scientist Summit. Ma'am, please. సుజిత 1 minute. మీకు ఇచ్చినటువంటి స్వాతంత్ర మ్యామ్ ఇంట్రో మీరు చదవండి మ్యామ్ది ఈ సెషన్. ఓకే మ్యామ్ సేమ్ టైం కి తన మెడిటేషన్ లో కూర్చుంటున్నారు. ఓకే యా తనది ఈ సెషన్ వీళ్ళు తీసుకుంటారు. Okay, so I would like to give an introduction for Savatantar ma'am. She is basically from Katwa district in Jammu and Kashmir. Her journey into meditation began in 2021, and over the past 4 years, meditation has become a central part of her life and service to the community. Recently, she constructed a meditation pyramid at her residence, where she now conducts weekly meditation sessions. These sessions are open to everyone and aim to guide individuals towards peace and inner awareness. During this inauguration of the pyramid, she invited Savita ma'am and Rachana Gupta ma'am from Ludhiana to lead an enlightening session attended by over 100 people. This event was deeply spiritual and well received by everyone. Following that, she also made another session with Sai Kumar Reddy from Hyderabad, and he conducted another powerful session on mindfulness and inner transformation. And another session was also conducted by Sarika ma'am that left attendees filled with peace and happiness. So these are all her community efforts. And apart from that, she also runs a school where a daily 20-minute meditation session is conducted for students, nurturing young minds with the values of peace, gratitude, and focus. Her dedication to spreading meditation and mindfulness continues to inspire many in the region and beyond. These are the main services and community services that Savdantar ma'am was doing. So I really admire and inspire her services. And I hope she's doing well in this wartime. And yeah, we all pray for her well-being. Ma'am, we have Renu Sharma ma'am. Namaste ma'am. And her description I've given in the chat. She's also a retired principal from Jammu and Kashmir. I think I'll take a little information from my side. I will announce. She's also a retired principal and she has arranged many sessions, meditation sessions on schools and in and around. And she is also a pyramid master. Thank you Renu Sharma ma'am and Shweta ma'am for please आपके experiences share कीजिएगा. Shweta ma'am, over to you. रेणु शर्मा मैम, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग कर लीजिए. नमस्ते. नमस्ते. बस पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन, जिनकी प्रेरणा से मुझे आज ये मौका मिला. श्वेता मैडम, जिन्होंने मुझे ये बोला कि आपने बताना है इधर अपना एक्सपीरियंस. अदरवाइज वही कठुआ वाली मैडम की तरह यहाँ अभी तक भी इस वक्त भी बम्बारमेंट चल रही है, डम डम की आवाज हमें आ रही है. बिल्कुल बंद, लाइट बंद है, तो चारों तरफ से कवर करके तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ लाइट ऑन करके. यहाँ से जहाँ बड़ी टेंशन चल रही है, आप सभी को जैसे मालूम है. बट अब जिस तरह से आदमी को ऐसे डर लगता है या कुछ, मैं भी 21 में कोविड के टाइम मैं मेडिटेशन के साथ जुड़ी थी. पत्री जी की ही वीडियो सुन के मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैं खुद ही बैठे बैठे ध्यान करना शुरू कर दिया. बस 15 मिनट से स्टार्ट किया, आहिस्ता 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 मेरा टाइम बढ़ता गया. 40 डेज जब हुए, क्योंकि ऐसे तो टाइम ही नहीं मिलता था स्कूल में भाग दौड़ में, तो मैंने क्या किया कि अब जब स्कूल खुले थोड़ा तो बच्चे थोड़े थोड़े आने लगे बीच में, तो
बच्चों को ऑनलाइन हम देते थे होमवर्क, तो मैंने अपने स्टाफ को, अपने कलीग्स को ही अपने साथ बिठा के बोला चलो बैठो, आप ऐसे इधर उधर की बातें करते रहते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, चलिए बैठिए और मेडिटेट करते हैं हम सब। तो मैं पत्री जी की वीडियो लगा के, म्यूजिक लगा के बैठ जाती थी उनके साथ आधा घंटा के लिए। इस तरह से मेरा मतलब छोटा सा ग्रुप बन गया स्कूल में ही, और हम मेडिटेशन करते थे पत्री जी के म्यूजिक पे। और आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली मुझे कोई मतलब विजन्स तो नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं उनके साथ बैठती थी, लेकिन जिनके साथ बैठती थी तो मुझे अपने ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो मुझे भी नहीं हो रहे हैं, चलो इनको तो अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगने लगा, तो मैंने ये अपनी रूटीन बना दी। कहीं भी चली जाऊँ, बस जाऊँ कि भी रात को 12 बजे भी पहुंचूं, 15 मिनट के लिए मैं जबकि अदरवाइज कुछ भी हो, बीच में मैं बीमार हो गई, मेरे पास थोड़ा ही था, 2 ही साल मेरी जॉब में, तो मैंने अपना ये कंटिन्यू रखा, अपना ये प्रैक्टिस जो थी मेडिटेशन की मैंने कंटिन्यू रखी, बड़ा अच्छा लगने लगा। बट फिर क्या हुआ, 2 ही साल थे, 1 ही साल बचा था मेरी जॉब का, तो मेरी ट्रांसफर हो गई, कहीं दूर हो गई। तो फिर मॉडिफिकेशन के बाद 1 साल जो बचा था, तो वहां पर भी मैंने यही किया। फिर मैंने यही यूनिवर्स को बोला कि शायद अब थोड़ा सा टाइम बचा है, तो चलो जहाँ थोड़े से लोगों को मैंने बताया है, शायद उधर बताना होगा, तो यूनिवर्स ने मुझे वहां भेज दिया। मैं वहां चली गई। वहां पर भी मेरा यही रहा कि बच्चों की क्लास में जब कोई नहीं था, तो मैं क्लास में चल जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को मेडिटेशन कराती थी। फिर उनके एक्सपीरियंस सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर दूसरी जगह जब मैं गई ट्रांसफर होके, वहां पर भी मैंने यही रखा कि सबको, कलीग्स को अपने साथ बिठा के मेडिटेशन के बारे में बताया, और ये शुरू कर दिया हमने। पत्री जी के फ्लूट लगा के, म्यूजिक लगा के, कोई वीडियो लगा के बच्चों को भी बताते रहे, और बीच बीच में सेशन कंडक्ट करते रहे, जैसे कोई मास्टर्स। मतलब मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, मुझे नहीं पता कैसे मिलता था मुझे मौका। मुझे ऐसे ही कहीं से फोन आ जाना, मैडम ऐसे ऐसे कोई मास्टर आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अरेंज करवा दें। तो वो मुझे नहीं पता कैसे होता था, कैसे अरेंज होता था, अपने आप हो जाता था, चाहे 10-15 लोग ही सही। इस तरह से हम करते रहे, अपनी रूटीन करते रहे। बीच में फिर रिटायर हो गई मैं, उसके बाद मुझे ये चिकनगुनिया की प्रॉब्लम हो गई। तो चिकनगुनिया की प्रॉब्लम इतनी सवीर हो गई मुझे कि बैठना मेरे लिए मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी एक एक चेयर पे बैठना, दूसरी चेयर पे टांगे फैला के बैठ जाती थी, लेकिन मैं अपनी मेडिटेशन नहीं मिस करती थी। बड़ा अच्छा लगता था मुझे कि मैं अपने लिए ये थोड़ा सा काम कर पा रही हूँ, और मेरी यही कोशिश होती थी, जो कोई मेरे पास आता था मैं यही कहती थी, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। चाहे मुझे कोई ये कहे कि ये पागल हो गई है, इसके साथ जो भी बात करो तो ये बोलती है मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। अगर कहीं बाहर जा रही हूँ, ऑटो में बैठी हूँ, तो ऑटो वाले को बोला, भैया आप क्या करते हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के ऐसे मेडिटेशन किया करो। बैठे बैठे मैंने उनको बता देना, भाई ऐसे करो, सांसों पे ध्यान दो, मेडिटेट करो। तो फिर मुझे ये भी एक्सपीरियंस होता था कि बहुत सारे लोग ना मुझे इग्नोर करने लगे। अपने मोहल्ले में भी मैं लोगों के घर जाऊँ, उनको बोलूँ आप आओ हमारे घर बैठ के तो मेडिटेट करते हैं, तो वो मेरे से ना आंखें चुराने लगे लोग। बात नहीं करते थे, ऐसे दूर 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 से ही मुड़ जाते थे कि अब ये बोलेगी हमें मेडिटेशन करो, लेकिन मैं तब भी बोलती थी। अब मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैंने घर में शाम को 4 से 5 बजे तक रखा हुआ है, मगर लोग कहते हैं हमने योगा करना है, मेडिटेशन नहीं करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम योगा ही करेंगे। योगा से स्टार्ट करके थोड़ा 15-20 मिनट योगा करा के, फिर उसके बाद मैं उनको मेडिटेशन में बिठा देती हूँ आधा घंटा के लिए। 10-15 लोग आने लगे, लेकिन अब आहिस्ता 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 फिर 2-3 ही बचे हैं सिर्फ जो कि अब आते हैं। बट फिर भी मैं अपनी छोड़ती नहीं हूँ कि बस जो भी आता है, मैंने बस यही कहती हूँ मेडिटेशन करो, इसी से आपका सब कुछ होगा, सब कुछ आपको मिलेगा जो भी आप चाहते हो। मेरी तो यही कोशिश होती है कि सारे बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सारे मेडिटेशन में आ जाएं। जिस दिन मैंने ये सुना था पत्री जी का वीडियो, तो मुझे उसी वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये
छोटे बच्चों के लिए कंपल्सरी होना चाहिए कि जैसे कोई सिलेबस होता है स्कूल में, ये सिलेबस होना चाहिए कि एक पीरियड ये भी हो कि जिससे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सारे मेडिटेट करें। क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि जब मैं स्कूल में करती थी, तो जिस स्कूल में जब मैं गई थी तो रिजल्ट बहुत लो आता था। तो मैंने सबको यही बोला कि क्लास में जब भी जाओ 5 मिनट के लिए सब बच्चों को आप बोलो मेडिटेशन करने के लिए, खुद भी करो, देखना आपका रिजल्ट भी आएगा। तो ये लालच फिर सबको आ जाता है। तो मैंने किया और मुझे इसका अच्छा नतीजा भी मिला, अच्छा रिजल्ट आया। जो 2 साल मेरे जॉब के बचे थे, बड़े अच्छे से मेरे निकले। लेकिन अब घर में थोड़े से चैलेंजेस होने के कारण, एक तो यहाँ पर माहौल भी ऐसा हो गया है, और साथ में घर में मेरे मदर जो है वो बीमार है। मैं मतलब वो अब मुझे बैठने नहीं देते हैं, थोड़ी उनकी मेंटल कंडीशन ऐसे हो गई है। लेकिन फिर भी मैं, अब जैसे मैंने आपको बोला कि बंद करके तो मैं बैठी हुई हूँ, मैं ऐसे बैठ नहीं पाती हूँ, फिर भी जब मुझे मौका मिलता है मैं बैठती हूँ। उनका कोटि कोटि नमन करती हूँ, पत्री जी को, जिन्होंने मेरे मन में ये डाला कि बस ये मुझे करना ही है, और ये मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। आप सबका धन्यवाद, पद्मा माँ का, ये श्वेता माँ मैडम का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। धन्यवाद। Thank you, ma'am. It's really inspiring to know how you spread meditation to young kids as well. Even adults, it is very hard for to make them sit in meditation, but you did very wonderful job teaching meditation for young kids. And even in your busy schedule, you try to do meditation every day and try to spread meditation. Despite of all your health issues and family issues, you keep trying to meditation, try to do meditation so that it will be your conditions will get better and we all see fruitful things in your life. Yep. Thank you so much, ma'am, Eve, Thank for you. joining us. Shweta ma'am, please. Yes. Unmute कर लीजिए मैम। Atvandan to all Divine Masters, co-founders of Patriji Meditation Channel, Padma Ma, Aparna ji, thank you for giving me a chance. मेरा नाम श्वेता खजूरिया है और मैं पंजाब से हूँ, और मैं 2 साल पहले ध्यान में आई हूँ पीएमसी हिंदी के माध्यम से। तो ध्यान में आने के बाद मैंने सिर्फ यही सीखा है कि हम को क्रिएटर्स हैं, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने इंटेंशन से, अपने अंदर की पावर से। हम जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ और मैंने पितामह का एक ही बुक पढ़ा था, संकल्प शक्ति, वहां से मुझे सिर्फ यही मैसेज पितामह का मिला कि हमको जो भी चीज चाहिए हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के सेवा में हैं या किसी प्योरिटी के साथ सेवा का काम कर रहे हैं, तो आपको सोर्सेस के बारे में नहीं सोचना कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो वो कैसे होगा। बस एक सिंगल थॉट रखिए तो वो काम हो जाएगा। और ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। जब हम सोचते हैं कि हमको सेवा का काम करना है, तो वो जो सोर्सेस हैं हमारा यूनिवर्स क्रिएट करता है। और जब से मैं सेवा में आई हूँ, मैंने बस यही से सोचा है कि किसी भी स्टेट के लिए काम करना है, सिर्फ उसके पीछे मोटिव क्या होना चाहिए कि हम माँ वसुंधरा के लिए कार्य कर रहे हैं, माँ वसुंधरा की असेंशन के पार्ट हैं। वो कहाँ किसके लिए किसी मास्टर के साथ जुड़ के काम करना है, हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना है, हमें अपने अंदर की फेमिनिटी को लव करना है, अपने अंदर की पावर को समझना है। तो इस चैनल के माध्यम से मुझे आज ये मौका मिला है, मैं सबके साथ अपना यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी और यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने अंदर की फेमिनिटी को प्यार करें। जब आप लव और कंपैशन से बढ़ जाएंगे तो आपका जो अराउंड है वो भी सब प्यार से और कंपैशन से बढ़ जाएगा। और जब भी आपको कभी भी कहीं भी मौका मिले तो आप सेवा करें, मेडिटेशन करें और जो मदर अर्थ है उसकी असेंशन का पार्ट बने। तो यूनिवर्स हमें जब माध्यम के रूप में चुनता है
तो जब हम रेडी रहते हैं तो यूनिवर्स भी हमको माध्यम के रूप में चुनता है। और जब हम सोचते हैं कि हम कर पाएंगे, बट जब आप अपने आप को सरेंडर मोड में रखते हो तो यूनिवर्स आपसे ऐसा ऐसा काम करवाता है जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो। तो अपने आप को लिमिट नहीं करें और को क्रिएटर बने। मैं आज के लिए बस यही मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू। Thank you, ma'am. Wonderful message. Like service oriented and no limits for the service and understanding the inner power and femininity. Thank you so much, ma'am, for coming थैंक यू। to this session. Thank you. Thank you so much, Savita ma'am. Thank you so much, Renu Sharma ma'am. Thank you so much. ఫ్రెండ్స్, మనం వీళ్ళిద్దరికి కూడా స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇవ్వాలి, బిగ్ క్లాప్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనం సినిమాల్లోనూ పుస్తకాల్లోనూ అద్భుతంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ గురించి విన్నాము, చదివాము, చూసాము. కానీ తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా మారిపోయినాయో మనకు తెలుసు, మనం చూస్తానే ఉన్నాము. కానీ దానిలో మెడిటేషన్, ధ్యానం అనే దాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మన మాస్టర్స్. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి ఇక్కడ నుండి టీమ్స్ గా వెళ్ళి ఎంతో ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అలా చేయడానికి కూడా ఇప్పుడు లేకుండా, అవకాశం లేకుండా ఒక వార్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఆ వార్ కండిషన్ లో ఉండి ఆ మ్యామ్ జాయిన్ అయ్యి ఇందులో తన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారంటే ఎంత గొప్ప విషయం అది. ఈ రోజు రావాల్సినటువంటి మాస్టర్ రాలేని పరిస్థితుల్లో ఆమె అక్కడ మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నారు. మరి ఎవ్వరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దేనిని వదిలిపెట్టట్లేదు. సవిత మ్యామ్ మీరు రావాలి మ్యామ్ అని చెప్పినప్పుడు మేడం ఒకటేమంటున్నారు, నాలో పద్మ మేడం ఏం చూశారు అని అన్నారు. ఇదే చూశాను మేడం నేను. ఈ పట్టుదల వచ్చి ఎలా అయినా సరే కమిట్ అయినప్పుడు ఎలా అయినా సరే దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి అనే పట్టుదలనే నేను చూశాను మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం వన్స్ అగైన్. ఒక చోట ఒక పరిస్థితి మారుతుంది అంటే, అద్భుతంగా ఉన్న వాతావరణం యుద్ధ వాతావరణంగా భయపెట్టేదిగా మారుతుంది అంటే దీనికి మూల కారణం ఏమై ఉంటుంది అని చెప్పేసి పత్రిజీ ఎప్పుడూ చూస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఆ మూల కారణాన్ని ఆయన సరిచేయటం మొదలు పెడతారు. మూలం నుండి ఎప్పుడైతే సరి చేయబడుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బయట కనిపించేవన్నీ కూడా సరైపోతాయి. ఈ బయటవే సరి చేస్తా ఉంటే మూలంలోది ఎప్పటికీ సరి అవ్వదు ఫ్రెండ్స్. ఆయన చేసేది అదే. దానికి మనం వదిలిపెట్టకుండా ఈ మాస్టర్స్ వచ్చిన దానికి ఈ రోజు కొంత అక్కడ జరగవలసిన మార్పు ఖచ్చితంగా జరిగే తీరుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఏం జరగాలో అది జరిగే తీరుతుంది. అంతా ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా మారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సవిత మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేణు శర్మ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సుజిత. Will you translate? Should I? Yeah. So yeah, Padma ma'am wants to give thanks to both of you, Savita ma'am and Renu ma'am. Despite of war and lot of atrocities there, you joined the meeting as scheduled and as committed, which is really appreciated. And we all our prayers and all our energies are with Jammu and Kashmir, and hope the issue get resolved as early as possible, and we again meet again on these sessions. Thank you so much, ma'am. Like to add to this, Thank you. Shweta ma'am, what ma'am felt is the day when we called you on telephone and you felt, what did Padma ma'am see in you that she had invited you on this platform? This is what she saw in you, the dedication, the commitment to do the need of where you have come here against all odds of your situation. You came and you joined. And as Sujata ma'am already shared with you, this was the thing which is going to bring a great change. Although you were in this war situation, but today your dedication, your commitment, and your samarpan, we can say, is going to create that atmosphere and situation, and things will turn for the better. That is the reason, might be, you will come to know in the future why you and Renu Sharma ma'am are here. Yes, Satwantar ma'am did not join today, but she is meditating masters.
वो आप देख लीजिए श्वेता मैम कि हम जितने बार भी बात करें आपको समझ में आएगा कि आप में जो लगन है, उन्होंने आपकी लगन को देखा, आपके जज्बे को देखा कि आप कुछ भी हो जाए आप यहाँ आकर ही नहीं। मास्टर्स, कैन यू मेक आउट? शी इज जस्ट covered with a small mobile light and she has joined on the mobile data. That is what Shweta ma'am is. That is what Renu Sharma ma'am is. Thank you. आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। Thank you.